السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اچھا رکھے۔ آج اس ویڈیو کے اندر کچھ ایک ایسی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان میری باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا، اور آنے والے ٹائم میں آپ اپنی زندگی کے اندر بہت سارا چینج اور بدلاؤ دیکھو گے۔ پہلی چیز سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ پیسہ کما رہے ہیں تو ان کی دو کیٹیگری ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان کی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ صرف محنت کے ذریعے سے کمایا جا سکتا ہے، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو محنت کے ساتھ ساتھ اس محنت میں اپنے دماغ کو کھپاتے ہیں، دماغ کو لگاتے ہیں اور وہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے نا محنت کرنے والوں کی، تو وہ صرف محنت کرتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس مجھے محنت کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ زیادہ دماغ نہیں لگاتے۔ تو آپ نے ہمیشہ دیکھنا اپنے آس پاس کے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے دوستوں کے اندر، تو جو لوگ صرف محنت کرتے جا رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بدلتا نہیں ہے، ان کا مائنڈ چینج نہیں ہوتا ہے، ان کا ذہن بدلتا نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں بس صبح اٹھنا ہے 9 بجے، مجھے محنت کرنے کے لیے باہر جانا ہے، 1000 روپے، 500 روپے، 200 روپے، جو بھی ان کی محنت مزدوری ہے اتنی کما کر لانا ہے، اور وہ پیسوں سے اپن نے کھانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے، اور بس ختم، کل کے لیے اور تیاری کرنا ہے۔ تو ان کی زندگی، ان کی لائف ہے نا اسی کے اندر ختم ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھنا کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، یہ جو طبقہ ہے نا یہ غریب ہی رہے گا، یہ مالدار نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو کام میں نہیں لا رہے، وہ صرف یہ سمجھ رہے کہ ہم کو محنت کرنا ہے، بس کافی ہے، دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے۔ اور اس کے برخلاف ایک آدمی وہ ہے جو محنت کر رہا ہے، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، اس محنت میں تھوڑا سا دماغ دوڑا رہا ہے، وہ سکون میں بیٹھتا ہے، کچھ اپنے بزنس کے بارے میں، کچھ کاروبار کے بارے میں، اور جو فیلڈ کے اندر وہ ہے اسی فیلڈ کے اندر وہ اگر ماہر ہونا چاہتا ہے، اور اس کے اندر اور آگے بڑھنے کے لیے وہ دماغ پر بوجھ ڈالتا ہے، دوستوں سے رائے مشورے کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ یہ قدم اٹھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اور جو محنت وہ کر رہا تھا نا، اب اس محنت کے ساتھ ساتھ اس نے دماغ لگایا تو وہ بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ پھر مارکیٹ سے، وہ پھر دنیا کے اندر ایک بڑا پیسہ کماتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ پیسہ کمانا کوئی برا نہیں ہے، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں ہمیشہ کہ یہ پیسے ہی کی بات کرتے ہیں، پھر پیسہ مطلب یہ جو چینل بنا ہے نا میرا، اب وہ اسی عنوان کا بن گیا، وہ اسی ٹاپک کا بن گیا، اس لیے میں ہمیشہ اسی تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے رہتا ہوں، اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو ضرورت مند تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے اللہ کے رسول نے ان کی مواخات قائم کی تھی، بھائی چارگی قائم کی تھی، تو انصار نے تو ان کے سامنے جان نثار بن گئے تھے، اپنی مطلب زمینیں دینے کے لیے، اپنی جائیداد دینے کے لیے، اپنے گھر دینے کے لیے، حتیٰ کہ یہ ان کے پاس اگر 2 بیویاں ہوتی تو یہ کہتے تھے کہ ایک کو ہم طلاق دے دیں گے اور عدت گزارنے کے بعد آپ نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اتنی زیادہ جان نثاری تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار میں گئے، چند سال تجارت کی اور مدینے کے سب سے بڑے مالدار آدمی بن گئے۔ تو پیسہ کمانا اگر برا ہوتا تو صحابہ کو بھی تو سمجھتا نا، تو بڑے بڑے صحابہ نے مال و دولت کو کمایا ہے، تو حلال طریقے سے اگر آپ کماتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بس ہم بھی کمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اس کے ساتھ دماغ کا استعمال کرنا نہیں چاہتے آپ، سمجھ رہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ان مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مثال ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو بارہا اس کے ذریعے سے سفر بھی کیے ہوں گے، اولا اوبیر کا۔ اب دیکھیے، اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ٹیکسیاں ہیں، لیکن خود کی ایک ٹیکسی بھی نہیں ہے۔ اس نے خالی دماغ لگایا، اپنے ذہن کو دوڑایا، ٹھنڈے دماغ سے سوچا، ایک ایپ بنایا، اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آ گئی،
लोग उस पर किसी गाड़ी पर ड्राइवर रहते हैं और दिन भर वो थकते हैं, 8-8 10-10 घंटे गाड़ियाँ चलाते हैं और बड़ी मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये महीने के अंदर कमाते होंगे। उसके बरखिलाफ़ जिसने ये ऐप बनाया, जिसने अपना दिमाग दौड़ाया, इसी के अंदर बैठकर आज करोड़ों रुपए वो कमा रहा है। तो बात है ना, मेहनत की ही है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ इसने भी मेहनत किया लेकिन अपना दिमाग लगाया। एक बंदा है वो मेहनत मजदूरी करता है, सुबह उठता है, बिस्तरी काम करता है, प्लम्बर काम करता है, या इसके अलावा कोई और काम करता है, मेहनत मजदूरी का पत्थर उठाता है। न जाने कैसे कैसे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, 1000 रुपये कमाने के लिए, 500 रुपये कमाने के लिए, लोग समझ रहे। लेकिन उसके बिर मुकाबिर एक बंदा है, वो थोड़ा सा उसके पास पैसा था, थोड़ा उसने अपने दिमाग पर बोझ डाला, उसने कारोबार के बारे में सोचा, तिजारत के बारे में सोचा, और कारोबार और तिजारत के बारे में सोचकर आज वो इसी में बैठकर, पंखे की हवा के नीचे बैठकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो एक तरफ एक मजदूर है, एक तरफ एक ताजिर है, समझ रहे। आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग, मान लीजिए हमारे देश के अंदर मुकेश अंबानी है, या इसके अलावा बहुत सारे लोग और भी है, तो एक बंदा है, ये कोई 24 घंटे काम नहीं करते हैं, लेकिन इनका पैसा इन्होंने सही जगह पर लगाया और बड़ी बड़ी कंपनियां खोलकर बैठे हुए हैं और आज पूरे ओल्ड लेवल पर गोया कि ये बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग इनके पास काम कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक ही बंदा है, समझ रहे बात, लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया, समझ रहे। कई ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि पहले एक आदमी गरीब था, एक फील्ड के अंदर काम करता था, उसने अपने दिमाग को दौड़ाया और फिर सही जगह पर दिमाग को दौड़ाकर उसी लाइन में आगे बढ़ता रहा, तो आज वो बड़े बड़े दुकानों के मालिक बन गए, बड़े बड़े कारोबारों के मालिक बन गए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। तो प्यारे भाइयों, बात सिर्फ ये है कि सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, मेहनत के साथ साथ अपने को उस मेहनत के अंदर जहन को डालना, दिमाग को डालना, सोचना समझना और उस फील्ड के अंदर हाथ पैर मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, और फिर साथ में अल्लाह ताला से दुआएं करना, ये ज़रूरी है। वैसे ही आजकल डिजिटल ज़माना है, तो स्टॉक मार्केट भी एक बेहतरीन रास्ता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सा दिमाग डालिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या, देखिए हमारी तरफ, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ दुनियावी एतबार से, समझ रहे बात, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से मार्केट का जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो लोग आप इसके गवाह है, जानते हैं। तो थोड़ी मेहनत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकत डालते हैं और रास्ते खोल देते हैं, समझ रहे ना बात आपको। अगर आप स्टॉक मार्केट ही की बात करें, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए होंगे और टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर मेरे ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और MM ट्रेडिंग जोन ऐप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक है। तो टेलीग्राम पर मैंने सुबह में ओरेंज सीमेंट का चार्ट डाला था, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये मैंने उसके अंदर बुक कर लिया, समझ रहे बात। उसके बाद एक स्टॉक के बारे में मैंने बताया था कि आपको बताना मेरा दिल चाहता है, आज सुबह की बात है, लेकिन मैंने उसको ख़रीदा। वो लॉट का स्टॉक था, मतलब जायज़ कैटेगरी का है, लेकिन पैसे उसके लिए थोड़े से ज़्यादा भी लगते हैं और रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से मैंने उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, समझ रहे बात। तो उसके बाद में मैंने 3:30 बजे स्क्रीनशॉट डाला, 3600 रुपये उसके अंदर प्रॉफिट हुआ। और भी न जाने कितने, जैसे लॉरेस लैब की मैं बात कर रहा 2-3 हफ्तों से, कितना आज तकरीबन सिंगल दिन के अंदर वो 7% ऊपर चला गया। तो आप मार्केट नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हो। तो आप सिर्फ कुट मेहनत मत कीजिए, समझ रहे ना बात को, मेहनत को सही रुख पर लाइए, अपने दिमाग को लगाइए। अल्लाह ताला ने जो ये दिमाग दिया है ना, तो सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं दिया है, मेहनत के साथ साथ हलाल तरीके पर अगर आप दिमाग दौड़ाते हैं, अपने जहन को काम पर लगाते हैं और सही मार्केट को भी आप सीख सकते हैं। मैं सिर्फ दिमाग लगाने की बात मार्केट के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप अगर मार्केट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप अपने फील्ड के ऊपर अपना दिमाग लगाइए, आप उसके अंदर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप और क्या कर सकते हैं उसके बारे में, समझ रहे बात। स्टॉक मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत आसान है। अगर आप सही तरीके से मार्केट को सीखेंगे तो बड़ा पैसा मार्केट से आप बना सकते हो। कितना बड़ा बना सकते हो, एक मिसाल दूं, अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है, कितने लाख रुपए है, एक मिसाल के तौर पर, ऐसे तो बहुत लोगों के पास 10-10 लाख रुपए है और सही नॉलेज ना होने के लिए लाख रुपए रोज का लॉस भी करते हो। आज ही एक साहब ने स्क्रीनशॉट डाले, जहां पर जाकर मैंने ओरिएंट सीमेंट को प्रॉफिट बुक किया,
वहाँ पर जाकर उन साहब ने स्टॉक को बाय किए। अब बताइए, तो ये गलत नॉलेज होने की वजह से फिर ऐसा लॉस भी होता है। लेकिन मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आपके पास, परफेक्ट नॉलेज आपने हासिल किया है, और अगर कोई स्टॉक सिंगल दिन के अंदर 10% जाता है, कितने परसेंट? 10%, और कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक 10% जाता है, 15 भी जाता है और 20% भी जाता है, समझ रहे बात? बस नॉलेज सही होना और सही टाइम पर सही जगह पर पैसा डालने की ज़रूरत होती है। इसी को सीखना और इसी को समझना पड़ता है, और इसी पर मेहनत करके, दिमाग वाली मेहनत करना पड़ती है, इसके ऊपर थकाना पड़ता है अपने आप को। तो 10 लाख रुपए आपके पास है और सिंगल दिन के अंदर 10%, जैसे लॉरस लैब आज 7% चला गया, तो आपके अगर 10 लाख रुपए उसके अंदर स्टॉक के अंदर होते तो 70,000 रुपये आपका प्रॉफिट बनता साहब। कितने हज़ार रुपये? 70,000 रुपये। तो एक आप डॉक्टर बनकर, आप प्रोफेसर बनकर या इंजीनियर बनकर, जो महीने के इतना बड़ी मतलब पोस्ट हासिल करने के बाद भी महीने के जो आप लाख रुपए कमाते हैं, 60,000 70,000 रुपये कमाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर सही इल्म हासिल कर कर, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, दिमाग लगाकर आप एक एक दिन में लाख लाख रुपए भी कमा सकते हो साहब। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट मैंने भी बुक किया हो, कई मरतबा हुआ। मैं समझ रहे बात? बहरहाल मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ मेहनत कर 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 अपने आप को कुट मत बनाइए, उस मेहनत के साथ साथ दिमाग भी लगाइए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेहनत की कमाई बहुत बुरी है। इस्लाम के अंदर तो अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा सबसे बेहतरीन है, समझ रहे? लेकिन आप अपनी मेहनत के साथ साथ कुछ दिमाग वाली मेहनत करके अपने पैसे को, अपने कैपिटल को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल पड़ा हुआ है, क्या करते हो बताए? बैंकों के अंदर रखते हैं। हमारे पास भीड़ के अंदर कई मरतबा ऐसा हुआ, बड़े बड़े फ्रॉड हुए, बड़े बड़े। कोई 10 लाख रुपए लिख रहा है, वो ठीवी रकम रखते हैं ना बैंकों के अंदर जाकर, वो बराबर साल का आपको 10% 12% देते रहते हैं, समझ रहे? ठीवी रकम रखने के बाद या महीने के कुछ परसेंट देते हैं, और बाद में क्या करते हो, कई बैंक के हैं बड़ी बड़ी फ्रॉड हो गए, भाग कर चले गए, वो चले गए इनके पैसे। हालांकि ये तो हराम है, नाजायज है, तब भी इसके अंदर जाकर पैसा रखेंगे। कितना अच्छा होता कि आप अपने सही नॉलेज हासिल कर कर उन्हीं पैसे को अपने एतमाद पर, अपने भरोसे पर उसके अंदर डाल देते। समझ रहे बात? एक साहब आज ही कहने लगे थे कि वो हीरा गोल्ड के अंदर खेत बेचकर, एक साहब ने तकरीबन कितने बताया, उन्होंने 30 लाख रुपए लगाए, और कुछ दिन के अंदर उनके पैसे लगाने के बाद उसका पैसा भी रिटर्न नहीं आया, और वो हीरा गोल्ड गायब हो गई, डूब गई, वो कंपनी चले गई, चला गया वो पैसा, खेत बेचकर लगाया वो पैसा। किसने कहा आपको अपनी मेहनत का पैसा इस तरह डालने से? कितना अच्छा होता कि आप मार्केट को सीखते, समझते और सही जगह पर इन्वेस्ट करते, सही जगह पर पैसा डालते। तो यहाँ पर पैसा बहुत बनता है। बस ये है कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ मेहनत से पैसा बनता है। मेहनत के साथ साथ दिमाग को इस्तेमाल करके आप बड़ा पैसा बना सकते हो। मेहनत के साथ साथ दिमाग को इस्तेमाल करके आप बड़ा पैसा बना सकते हो। समझ रहे बात? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।